everyone. Myself Dr. Ravi Kesri. Today I will please share, subscribe and like my video. Today I will discuss about the skeletal system and the locomotory system. Locomotory system, what is locomotory system? It is an organ system that gives the ability to move using muscular and skeletal system. In our body, the different muscles are present, just like the biceps, just like the triceps, just like the quadriceps in the lower limb and the biceps and triceps in the upper limb. हम लोग जिम जाते हैं और जिम जाने में क्या करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. क्या से बनता है ये बनता है हमारे बोन से. और ये जो बनता है, सिस्टम जो बनता है वह बोन से बनता है, बोन से बनता है. और बोन से, मसल से बनते हैं, कार्टिलेज से बनता है, टेंडन से बनता है एंड लिगामेंट से बनता है एंड ज्वाइंट से बनता है. तो ज्वाइंट हमारे बॉडी में कैसे हैं? बहुत सारे ज्वाइंट हैं, जस्ट लाइक द शोल्डर ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन द एंड द एल्बो ज्वाइंट इन द एल्बो रीजन, द एल्बो ज्वाइंट. So then it is made up of bones, the muscle, the cartilage, the tendon, the ligament and joints. I will discuss one by one. And main function of the skeletal system to support the body in standing position, protect the vital organ. What are the vital organ in our body? Just like the brain. Brain is the vital organ. Heart, it is the vital organ which is present in the thoracic cavity, the stomach, the liver and the kidney. These are the vital organ. तो क्या करता है skeletal system? ये सपोर्ट किया, बॉडी को सपोर्ट किया और वाइटल ऑर्गन हमारे जो बॉडी में है, जस्ट लाइक द ब्रेन, हार्ट को, इसको भी प्रोटेक्ट किया. एंड कार्टिलेज क्या करता है? इट प्रिवेंट फ्रिक्शन एट द बोन एंड. जहां जहां पर बोन का एंड है, जस्ट लाइक द ह्यूमरस बोन कहां पर एंड किया? तो अल्ना और रेडियस और अल्ना बोन पे एंड किया. तो वहां पर क्या किया? वहां पर ये फ्रिक्शन को कार्टिलेज क्या किया? प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एट द bone ends that are coming in contact with one another. And ligament क्या किया? One bone को, it attach one bone to the other bone. So ligaments, it connect the one bone to the other bone. And cartilage क्या किया? Friction को कम किया. Ligament and tendon क्या किया? Tendon, it attach muscle to the bone. Ligaments attach one bone to the other bone and tendon attach muscle to the bone. Now the locomotory system are divided into the three things. The first is the skeletal system, second is the muscular system and third is the joint. Now the skeleton system, the word skeleton कहां से derive हुआ? Greek word dryad body, that is mummy. Dryad body, that is the mummy. In this figure we see the different cartilage, just like the costal cartilage. The different cartilage are present, just like the costal cartilage. These are the costal cartilage. And this bone is the humerus bone, and this is the ulna and the radius bone. The ulna and the radius bone, this is the hip bone. This is the hip bone, and here is the pubic symphysis. This is the humerus bone, and this is the, on both sides, the clavicle bone, and this is the whole bone, that is the skull bone, which contains the bony socket, the mandible bone and the upper jaw and the lower jaw. Here is the femur bone, and here is the tibia and the fibula bone, and here is the bone of the tarsal bone and the metatarsal bone, the tarsal bone and the metatarsal bone, and here is the carpal bone, and these are the different metacarpal and the phalanges. And in between the vertebra, there are the different cartilage are present, just like the intervertebral disc. This is the vertebra, this is the another vertebra, and in between the vertebra, the disc is present, that is called the intervertebral disc, and this is the cartilaginous. And the different cartilage are also present in the larynx, just like the thyroid cartilage, the cricoid cartilage. These are the larynx
which is also called the voice box. In the larynx, also the different cartilage are present, and where the joint are formed, just like the wrist joint, the elbow joint, or the shoulder joint. In these joints, also the different cartilage are present, and these cartilage are called the articular cartilage. The articular cartilage. In the larynx, the different cartilage, some are the paired cartilage and some are the unpaired cartilage, just like the thyroid cartilage, the cricoid cartilage. These are the different cartilage which are present in our body. Now, the skeleton is divided into the two division. One is the axial skeleton. One is the axial skeleton. Axial skeleton क्या होता है? It is the central axis. That is the vertebra. That is the vertebra, and it is formed by 80 bones. It is formed by 80 bones, and two things contain axial skeleton: a skull and a vertebra. Both are present in our central axis. The skull is the cranial expanded end, and it protects. The skull के अंदर क्या है? Brain है. It protects the brain. And vertebral column क्या है? It is in the central axis of the body. It is present in the central axis. और ये vertebral column कैसे बनता है? तो different vertebra से बनता है. Just like the ये vertebra एक हो गया, दिस इज द दूसरा वर्टिब्रा हो गया, और इनके बीच में क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनता है? वर्टिब्रा से. और वर्टिब्रा के अंदर क्या है? वर्टिब्रल, डिफरेंट वर्टिब्रा मिलके ये बनाया वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. तो वर्टिब्रल कॉलम इट इज द सेंट्रल एक्सिस, और ये कैसे बनता है? वर्टिब्रा से बनता है. और वर्टिब्रा के बीच में क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? That is the spinal cord है. Vertebral column के अंदर it protects the spinal cord and transmits the weight from the upper limb to the lower limb. That is the axial skeleton. Axial skeleton. And bone and cartilage. Osteology क्या है? It is the study of all bone in the body. तो osteology. Osteo means bone. Logos means study. The study of all the bones in the body with their associated cartilage and membrane. Osteon, the term is osteon. Osteon means होता है bone. And skeleton कैसे बना? Bone and cartilage से बना. The skeleton is the bony and cartilaginous framework of the body. And bone and cartilage are स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है. और स्केलेटन में हमारे कितने बोन हो गए? 206, जिसमें एक्सियल स्केलेटन हुआ और दूसरा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में क्या आया? स्कल एंड वर्टिब्रा. एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आया? द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी के बोन, द अपर लिम्ब के बोन, द लोअर लिम्ब के बोन. दैट इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन ये कैसे बना? It consists of 126 bone. 126 bone. Appendicular skeleton. It is formed by two pair of limb of superior and inferior. यानी अपर लिम्ब में बोन है और कुछ बोन है हमारे inferior extremity में, which are divided into joints for locomotion and grasping. हम लोग ग्लास को पकड़ते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, तो ये हेल्प करता है एपेंडिकुलर स्केलेटन. जो सुपीरियर और एक्सट्रीमी और इंफीरियर एक्सट्रीमिटी के जो भी स्केलेटन है, जो भी कार्टिलेज और बोन है, वो हेल्प करते हैं हमें लोकोमोशन में. हम लोग वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग में भी डिफरेंट बोन्स और कार्टिलेज और ज्वाइंट मिलकर हमें हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, वॉकिंग करने में, और या किसी चीज को ग्रास्प करने में. जैसे हम लोग बॉल को ग्रास्प करते हैं, ग्लास को ग्रास्प करते हैं, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन इट हेल्प्स इन द ग्रास्पिंग एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 126 बोन. एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन हो गया और यहां पर हो गया 126 बोन, एंड टोटल 206 बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो बोन का क्या फंक्शन है? बोन जो है हमारा क्या करता है? बोन शेप दे दिया. इट प्रोवाइड्स द शेप टू आवर बॉडी, सपोर्ट द बॉडी एंड सरफेस फॉर मसल एंड टेंडन. तो बोन जो भी होगा उसके साथ अटैच रहते हैं मसल और टेंडन का अटैचमेंट होता है. उसके बाद क्या करेगा बोन? जैसे स्कल है तो स्कल में क्या रहेगा? ब्रेन. वर्टिब्रा कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड. इट आल्सो प्रोटेक्ट द स्कल, ब्रेन, आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड
लंग एंड हार्ट। तो लंग और हार्ट कहां रहेगा? लंग एंड हार्ट प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में क्या है? हमारे जो कवर है हमारे लंग और हार्ट, वह बोन से कवर है। जैसे सेंटर में स्टर्नम हो गया और साइड साइड में जो है हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स है, वो से जो है लंग एंड हार्ट को प्रोटेक्ट किया। दस इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन, safe to the body, support to the body, and also protection of the your vital organ, the important organ. Now the bone also helps in the storage of the minerals, just like the calcium, the phosphate, and also helps in the walking and grasping the object, grasping of the objects, just like the glass को हमने पकड़ लिया, बॉल को हमने ग्रास्प किया। उसके बाद बोन जो है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस मींस प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन, जस्ट लाइक द रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे बोन में दो तरह के मैरो होते हैं, एक होते हैं रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो मैरो। येलो मैरो क्या किया? फैट को स्टोर किया। और रेड मैरो क्या किया? वह आरबीसी का प्रोडक्शन किया, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन किया और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन किया। दीज आर द फंक्शन ऑफ द बोन। नाउ द कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? हमने अपनी कार्टिलेज भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड, इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अब जो है हम लोग देखेंगे कि कार्टिलेज कहां कहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ये प्रेजेंट रहता है इन द एरिया वेयर द रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी आर रिक्वायर्ड। जहां पर रिजिडिटी होगा, जहां पर इलास्टिसिटी होगा, वहां पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे। एंड कार्टिलेज में क्या रखा रहता है? सेल्स रहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स, सेल्स के बाहर में क्या रहता है? बहुत सारे फाइबर रहते हैं। अब जो है बोन का जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, लेकिन कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स ऑफ द कार्टिलेज क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये सेल्स जो होते हैं कहां लोकेटेड रहते हैं? लैकुना में और लिटिल स्पेस, जस्ट लाइक द दिस इज द lacunar space, and inside the lacunar space this cartilage, that is the chondrocyte is present. This is the chondrocyte is present. और बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे लैकुनी है, लैकुनी के अंदर क्या है? सेल्स है, दी ज्यादा सेल्स। और उसके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दैट इज द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या है ये? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। नाउ they are either singly placed or in group of cells, on group of 2 or more cells. Now the collection of number of cells in a single lacuna को हम लोग कहते हैं term is cell nest. तो यंग सेल जो होंगे, कॉन्ड्रोसाइट के जो सेल होंगे, उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बाय माइटोसिस द यंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओल्डर सेल जो हो जाएंगे, जो बूढ़े हो गए सेल्स, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे क्या? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? ऑसिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज इन एडवांस स्टेज। तो हम लोग में क्या होता है? यंगर एज में ऑसिफिकेशन इजीली होता है, लेकिन ओल्डर एज में भी ऑसिफिकेशन करना है, एडवांस एज में भी करना है, एट एज ऑफ द 40 में भी करना है। तो जो ओल्डर सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के जो सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन फॉस्फेट और वो क्या करता है? ऑसिफिकेशन करता है ऑफ द कार्टिलेज इन एडवांस एज। दस द कार्टिलेज में क्या है? बोथ द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट। अब जो है सेल्स के बीच में क्या हमने बताया? इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया। वह क्या किया? फर्मनेस टू द कार्टिलेज दिया, फर्मनेस ऑफ द कार्टिलेज दिया, फर्म दिया। अब जो है हाइलुरोनिक एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है इन द कार्टिलेज। वह क्या किया? कैपेबल ऑफ वेट बेयरिंग स्पेशली इन द एट द फ्रीली मोबाइल साइनोवियल ज्वाइंट। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है कार्टिलेज में। वह क्या किया? मूवेबल किया, साइनोवियल ज्वाइंट को मूवेबल किया, जस्ट लाइक द हिप ज्वाइंट, द नी ज्वाइंट इज आल्सो साइनोवियल ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इज आल्सो ए साइनोवियल ज्वाइंट। तो वहां पर ये हाइलुरोनिक एसिड क्या किया? वह मूवमेंट में हेल्प किया, मूवेबल बनाया ज्वाइंट को। एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स आर chondroitin sulfate and the proteoglycan. These are the other substance, other composition of the ground substance. This is the location. तो लोकेशन कहां हुआ? जहां पर भी रिजिडिटी है प्रेजेंट है और इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। नाउ द कार्टिलेज का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कार्टिलेज में? कि कार्टिलेज में क्या होते हैं? नर्व्स नहीं होते हैं। कार्टिलेज हैज
नो नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्टिलेज हैज नो नर्व्स। तो नर्व नहीं है तो क्या होगा, पेन इनसेंसिटिव, यानी पेन नहीं होगा। कार्टिलेज में क्या होगा, नर्व्स नहीं है, और उसमें क्या है, किसी तरह का ब्लड वेसल्स भी नहीं है, यानी कार्टिलेज इट इज एवेस्कुलर, और उसमें किसी तरह का नर्व्स नहीं है, इनसेंसिटिव टू पेन, एंड इट हैज पुअर रीजनरेटिव कैपेसिटी आफ्टर इट्स। अगर किसी तरह का इंजुरी हो गया तो उसमें रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है, पुअर रीजनरेटिव कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि यह ए वैस्कुलर है, क्योंकि इट इज ए वैस्कुलर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पेरिकॉन्डियम। तो कार्टिलेज क्या है, इंक्लोज्ड है एक कनेक्टिव टिश्यू से, बाहर में कनेक्टिव टिश्यू से, और उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्डियम, जहां पर की ब्लड वेसल्स है। कार्टिलेज में क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व नहीं है, तो नर्व नहीं है तो क्या होगा, पेन इंसेंसिटिव हो गया, ब्लड वेसल्स भी नहीं, ए वेस्कुलर। लेकिन पेरिकॉन्डियम जो है ये कार्टिलेज है, और कार्टिलेज के चारों क्या है, पेरिकॉन्डियम, कार्टिलेज के चारों क्या है, सॉरी, कार्टिलेज के चारों ओर क्या है, पेरिकॉन्डियम। तो ये पेरिकॉन्डियम जो है कार्टिलेज के चारों ओर, वह जो है वह वैस्कुलर है। पेरिकॉन्डियम विच इज रिच इन ब्लड वेसल्स, and cartilage also receives nutrition from these blood vessels by diffusion through ground substance। तो बट पेरिकॉन्ड्रियम तो प्रेजेंट है, बट पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट कहां पर है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में, जहां पर आर्टिकुलर सर्फेसेज ऑफ द बोन के हैं वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम में दो लेयर हो गए, एक आउटर फाइब्रस लेयर हो गया और इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर हो गया। कॉन्ड्रोजेनिक लेयर क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्ड्रोप्लास्ट को प्रोड्यूस करेगा, और फाइब्रस लेयर क्या प्रोड्यूस करेगा, इट कंटेन्स कोलाजन फाइबर्स एंड इज वैस्कुलर, कोलाजन फाइबर एंड इज वैस्कुलर। नाउ तो कार्टिलेज का जो होगा वह ग्रोथ होगा। तो कार्टिलेज बाहर से पेरिकॉन्ड्रियम में कवर है, उसके अंदर में सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहां प्रेजेंट है, वह लैकुनी में प्रेजेंट है, और बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज को प्रोड्यूस करेगा या फिर हाइलुरोनिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। अब ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वह दो तरह से होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल ग्रोथ और दूसरा होता है अपोजिशनल या एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरस्टिशियल ग्रोथ क्या करेगा, इंक्रीज इन द लेंथ करेगा, और अपोजिशनल ग्रोथ क्या करेगा, थिकनेस को बढ़ाएगा। अपोजिशनल ग्रोथ क्या करेगा, थिकनेस को बढ़ाएगा। जैसे हम लोग का ट्री होता है, तो ट्री का जब ग्रोथ होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, तो दो तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है कि लंबाई बढ़ता है, और साथ साथ उसका जो स्टेम होता है प्लांट का, उसका थिकनेस भी बढ़ता है। उसी तरह से हम लोग कार्टिलेज का भी ग्रोथ होता है, इंटरस्टिशियल ग्रोथ। उसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट increase in the number by mitosis and from the center of the cartilage model, and this causes increase in the length। The interstitial growth, that is the internal or inside growth by the chondrocyte, वह लेंथ को बढ़ा दिया। Oppositional growth मतलब that is the external growth or outside growth, and layers of the cartilage cells develop underneath the perichondrium, and this causes increase in the width of the cartilage model। तो width बढ़ गया। नाउ द फंक्शन क्या है, सपोर्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू एंड स्लाइडिंग सरफेसेज फॉर द ज्वाइंट एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन। These are the different peculiar feature of the cartilage, perichondrium of the cartilage, Now the cartilage जो होते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, because of their location in the cell nest and lower antigenicity, the homogeneous cartilage transplantation can be done without the tissue rejection। यानी कार्टिलेज का क्या हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। लोकेशन लोअर एंटीजेनिसिटी, क्या है इसका, एंटीजेनिसिटी, जो एंटीजन का प्रोडक्शन है वो लोअर है, सो इसलिए कार्टिलेज का ट्रांसप्लांटेशन, होमोजेनस कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन विदाउट द टिश्यू रिजेक्शन, विदाउट एनी रिजेक्शन का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब जो है कार्टिलेज जो है वह तीन तरह के कार्टिलेज, अगर हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, दो कार्टिलेज जो है वह तीन तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है तुम्हारा, कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। तीन तरह के कार्टिलेज हो गए, एक हो गया हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा हो गया इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा हो गया फाइब्रस कार्टिलेज। नाउ क्लिनिकल, व्हाट आर द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द कार्टिलेज। फर्स्ट है कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी, क्या है फर्स्ट टर्म,
कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी, इसको समझना होगा कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी क्या होता है। These are a group of disease where there will be the disturbance of the growth and subsequent ossification of the cartilage, यानी ग्रोथ नहीं हुआ और दूसरा ऑसिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कॉन्ड्रोमिस कार्टिलेज एंड डिस्ट्रॉफी, यानी कार्टिलेज का जो सब्सिक्वेंट ऑसिफिकेशन होना चाहिए था कार्टिलेज का वह नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस ऑफ द ग्रोथ हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी। Second is the rupture, traumatic rupture or detachment of the cartilage. It is more common in the knee joint. Knee where the white fibrous cartilage in the menisci is affected. तो meniscus हमारे knee joint में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के meniscus होते हैं, जस्ट लाइक द मीडियल meniscus या फिर लैटरल meniscus होते हैं, वहां पर क्या रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज रहता है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, एंड वो क्या होता है, उसका डिटैचमेंट हो जाता है, कार्टिलेज का डिटैचमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉमेटिक रप्चर। नेक्स्ट है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कोस्टस मींस कार्टिलेज, टू इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज, कोस्टो मींस कोस्टल कार्टिलेज, कॉन्ड्राइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज, तो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज इन द रिफ दैट causes the chest pain, the chest pain the one cause is myocardial infarction, very important, हार्ट अटैक आया और चेस्ट पेन हो गया, लेकिन सेकंड कॉज क्या हो गया, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। नेक्स्ट इज द herniation of the intervertebral disc, क्या है, herniation of the intervertebral disc, इसमें क्या होगा कि एक डिस्क हुआ, दूसरा डिस्क हुआ और इसके बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो हर्निएट कर गया, बाहर आ गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बाहर आ गया, तो यहाँ पर बहुत सारे नर्व है, नर्व रूट प्रेजेंट है, तो वह जो डिस्क जब बाहर आएगा तो वो नर्व रूट को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। दिस इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क कॉजिंग हर्निएशन ऑफ इट्स कंटेंट एंड दैट ऑफन कंप्रेस द एडजेसेंट नर्व। तो नर्व का यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे नर्व रूट, यहाँ पर एक वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और यहाँ पर बहुत सारे नर्व जो है वह स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, नर्व रूट प्रेजेंट है, तो जब हर्निएशन हुआ डिस्क से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जब कंटेंट बाहर आ गया, तो वह क्या किया, नर्व को, ये जो नर्व था दैट नर्व इज कंप्रेस्ड एंड दैट कॉजेज द बैक पेन। तो बैक पेन का एक कॉज हुआ क्या, हर्निएशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नेक्स्ट इज द ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज, कभी कभी क्या होते हैं, कार्टिलेज में बहुत सारे ट्यूमर बनते हैं, कुछ बेनाइन बनेंगे और कुछ मैलिग्नेंट बनेंगे। बेनाइन ट्यूमर को हम लोग टर्म देते हैं कॉन्ड्रोमा और मैलिग्नेंट को बोलते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। नेक्स्ट है कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन, मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज एक्ट्स एज एन इम्यूनोलॉजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ द lymphocytes और द immunoglobulin. It acts as a immunological barrier, and because of this property cartilage from one individual can be transplanted without the tissue rejection. First cause is low एंटीजेनिसिटी, दूसरा हुआ कि ये इम्यूनोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है और लिम्फोसाइट के एंट्री को ये प्रिवेंट करता है, या इम्यूनोग्लोबुलिन के एंट्री को प्रिवेंट करता है, इसके कारण इसमें टिश्यू रिजेक्शन काफी कम होता है, इसलिए हम लोग कार्टिलेज का ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। नाउ तो हम लोग कार्टिलेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं, 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है इलास्टिक और तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या है, वह इंटरसेलुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द लैकुनी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लैकुनी क्या है, लैकुनी के अंदर जो होता है वह सेल्स रहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट के सेल्स रहते हैं और उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस रहता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस में टाइप 2 कोलाजेंस फाइबर होते हैं, और दूसरा होता है पेरिकॉन्डियम, वह भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और कहां पाए जाते हैं, इट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज द मोस्ट कॉमन कार्टिलेज, और कहां प्रेजेंट रहता है ये हाइलिन कार्टिलेज, तो ट्रैकिया में हमारे जो भी लैरिंग्स है, ब्रोंकाई है और कोस्टल कार्टिलेज है वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा कार्टिलेज है इलास्टिक, नाम ही है इलास्टिक, इसलिए कहां प्रेजेंट रहेगा, ई फॉर ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, स्ट्रेचियन ट्यूब एंड एपिग्लोटिस, पेरिकॉन्डियम यहां भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यहां पर जो सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स रहते हैं वहां पर मैट्रिक्स में क्या रहते हैं, इलास्टिक फाइबर, तो ये सेल्स हो गया, जस्ट लाइक द, ये सेल्स हुआ, ये सेल्स हुआ, ये सेल्स हुआ, ये सेल्स हुआ, मैट्रिक्स, और इसके बीच में क्या हो गया, यहां पर ये फाइबर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द इलास्टिक फाइबर, ये सब क्या है, इलास्टिक फाइबर है, तो ये हो गया तुम्हारा, और पेरिकॉन्डियम यहां भी प्रेजेंट है। थर्ड जो है वह फाइब्रस कार्टिलेज में क्या होता है, यहां पर पेरिकॉन्डियम एब्सेंट, पेरिकॉन्डियम एस्टम, कोलाजन फाइबर है, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स के जो सेल्स हैं वह प्रेजेंट है इस तरह से, रो में प्रेजेंट है, और इनके बीच में क्या है, ये जो फाइबर्स हैं, रो ऑफ कोलाजन फाइबर जो है वह प्रेजेंट है,
कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, दैट इज द फाइब्रस कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट हुआ ई फॉर एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, यूस्टेचियन ट्यूब और एंड एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट हुआ फाइब्रस कार्टिलेज, यहां पर भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है वो क्या है, कोलाजन फाइबर, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि पेरिकॉन्ड्रियम यहां पर एब्सेंट है। और कहां कहां प्रेजेंट रहता है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जस्ट लाइक द प्यूबिक सिम्फाइसिस इन बिटवीन द प्यूबिक बोन, मैनुब्रियम स्टर्नम एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहां पर ये सब सारे कार्टिलेज प्रेजेंट है। मेनिस्का जहां पर भी हम नी जॉइंट में जहां भी मेनिस्कस होते हैं, आर्टिकुलर डिस्क जहां भी बनता है, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हुआ या फिर ग्लेनोइड लैब्रम हुआ, ग्लेनोइड कैविटी जहां पर ग्लेनोइड लैब्रम का फॉर्मेशन होगा, या एस्टेबुलर लैब्रम दैट इज द शोल्डर जॉइंट में क्या रहता है, ग्लेनोइड लैब्रम। और एस्टेबुलर लैब्रम कहां मिलेगा तुमको, हिप जॉइंट में, तो वहां भी ये जो है, ये ग्लेनोइड लैब्रम और ये जो है एस्टेबुलर लैब्रम जो भी वो है, वह फाइब्रस कार्टिलेज का बना होते हैं, यानी कार्टिलेज जो है प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट लाइक द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पर क्या है, हिप जॉइंट, वहां भी तुम्हारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है ना, कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो दीज आर द डिफरेंट कार्टिलेज विच आर प्रेजेंट इन द, या यहाँ पर नी जॉइंट के पास कार्टिलेज है, तो वहां पर भी तुम्हारे फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट हो गया। तो हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है इलास्टिक और तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। तो आज हमने डिस्कस किया स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कार्टिलेज के बारे में और बोन के बारे में। बोन एंड द कार्टिलेज बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू, और 2 तरह के स्केलेटन हो गए, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन, जहां पे 80 बोन है और एपेंडिकुलर में 126 बोन है। और बोन का फंक्शन जो है वह प्रोटेक्शन है, कवरिंग है, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स है, और कार्टिलेज जो है सेल्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। कार्टिलेज के पास नर्व नहीं है, पेन नहीं होगा और ब्लड वेसल्स नहीं होगा। लेकिन पेरिकॉन्ड्रियम में क्या होगा, वहां पर भी पेरिकॉन्ड्रियम में वहां पर ब्लड वेसल्स है, इट रिच इन ब्लड वेसल्स, बट इट इज एब्सेंट इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, फाइब्रस कार्टिलेज, और वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द different the introduction of the skeletal system, the bone and the cartilage. Thank you.